Okay, so welcome back again. It's day 35 and today we'll be solving this count prefix and suffix pairs, the second part. So this is a problem from the recent contest, the hard problem from the recent contest, a weekly contest 385. So in the question you're basically given a words ka array, and what you have to do is you have to return the number of pairs such that I0 and J1 such that the string 1 is both the complete string 1 is both the prefix and suffix of the next string. So suppose in this example it's ABA and the second string is ABABA. So if you see, ABA is both a prefix and also a suffix in this string. So you basically have to return the total pairs कि कितने ऐसे pairs है, and I should be less than equal to j. ठीक है. So second example, if you see PA and PA, so if you see PA is both again a prefix and a suffix in the second string, so you have two strings वैसे PA वाला and MA वाला. That's why the total answer here is 2. The total number of pairs we have is 2. And यहाँ पे there are no such strings. There is a string AB which is a prefix and suffix in ABAB, but you have to give I should be less than equal to j. So that's why you don't have any pairs in this one. ठीक है. बिफोर प्रोसीडिंग इन दिस क्वेश्चन जस्ट रीड ये क्या होता है स्ट्रिंग हैशिंग. So basically any string or a substring can be assigned a particular number, that is the hash value of the string. So how to calculate that, how like solve the problem of rolling hash, those two concepts will actually help you to solve this, because ठीक है दैट आई टेल यू कि इस लाइक ये एल्गोरिदम यूज़ करके ये कैसे सॉल्व होगा. सो आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग यू कि कंप्यूट हैश कैसे कैलकुलेट करेंगे. इसे तुम ब्लैक बॉक्स कर लेना फॉर दिस ट्यूटोरियल, बट यू नीड टू बी अवेयर दैट ऐसा कंप्यूट हैश एग्जिस्ट. एंड व्हाट आर हैश कोलिजन्स, इसमें हैश कोलिजन क्यों नहीं आता, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैश कोलिजन जो यहाँ पे लिखा है 1/m. सो हाँ, जस्ट रीड दैट कि हाउ दिस होल हैश थिंग वर्क्स. ठीक है. नाउ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें. सो लेट्स जस्ट कंसिडर वन एग्जांपल विच इज़ ए बी एक स्ट्रिंग है तुम्हारे पास, एंड उसके बाद यू हैव वन मोर स्ट्रिंग A B. ठीक है. सो what I am doing in this question is I am iterating from right to left, and I am also maintaining a map of int comma int, and what this will store is hash frequency. ये मैं बताता हूँ अभी क्या है, what is this hash frequency. So suppose you are at this particular number and you have a method ready with you which is get hash, which would be very much similar to this particular compute hash कि एक string का hash कैसे calculate होता है. So this function will actually give you, it will take a string as a parameter, and it will return you a long number. ठीक है. तो for any string it can give you the hash number. Now you are given this AB, नहीं वो नहीं दिया. ठीक है. Like forget that, you are in this particular string. सो वॉट यूल डू इज़, अभी के लिए मैं बस तुम्हें फ्लो बता रहा हूँ, तुम्हें धीरे धीरे समझेगा वो क्यों हो रहा है. तो तुमने A B का हैश निकाला. सपोज़ ये आया 37. ये सपोज़ थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते 112. ठीक है. A B को जो लाइक जब तुमने गेट हैश में पास किया तुम्हें 112 मिला. नाउ तुम चेक करोगे कि इस हैश फ्रीक्वेंसी में 112 का फ्रीक्वेंसी क्या है. यू विल ट्राई टू गेट द हैश फ्रीक्वेंसी ऑफ 112 विच इज़ करेंटली ज़ीरो, क्योंकि हमने अब तक हैश फ्रीक्वेंसी में कुछ सेट ही नहीं किया. सो तुम्हारा जो ग्लोबल आंसर है दैट इज़ ऑल्सो करेंटली ज़ीरो. ठीक है. नाउ ये था स्टेप 1, फर्स्ट प्रोसेस डन. तुमने इस पूरे स्ट्रिंग का हैश निकाला, हैश फ्रीक्वेंसी में चेक किया कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है उस पर्टिकुलर हैश का, वो ज़ीरो है, तो यू जस्ट मूव्ड अहेड. डन. अभी सेकेंड पार्ट क्या आता है, इसी स्ट्रिंग में रहना है तुमको भी. ठीक है. वर्ड लाइक ये था स्टेप 1. नाउ व्हाट इज स्टेप 2. स्टेप 2 इज़ तुम इस A B को ना अभी थोड़ा प्रोसेस करोगे. हाउ यू वुड डू दैट. सो इसका क्या होगा ना, पहले एक सफिक्स स्ट्रिंग बनेगा विच इज़ द सफिक्स ऑफ हैश, विच इज़ ये इसमें टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5. सो 1 2 3 4 5 टोटल 5 एलिमेंट्स होंगे इस पर्टिकुलर अरे में. एंड बी, ठीक है, कुछ ऐसे तुम्हें फिर इसको भी फिल कैसे करेंगे. तुम्हें पहले बी का हैश निकालना है. सपोज़ बी का हैश आया 2. फिर तुम्हें हैश निकालना है ए बी का हैश आया ले लो 7. ए बी सी का हैश आया 9. बी का हैश 13. रैंडम वैल्यूज आई एम टेकिंग, मुझे लाइक तुम देख लेना गेट हैश कैसे काम करता है. एंड ए बी का वैल्यू आया ले लो 17. सो दिस इज़ दी सफिक्स हैश, ये मैंने राइट साइड से फिल किया है, एंड दीज आर माई सफिक्स हैश. Once you have calculated your suffix hash, again let's write the same number
ठीक है, पहला स्टेप सफिक्स हैश कैलकुलेट करना। नाउ तुम प्रीफिक्स से स्टार्ट करोगे, अगेन 1 2 3 4 5, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू इज़ तुम ए का हैश कैलकुलेट करो, इसमें तुम्हें फिल नहीं करना है, ठीक है, यू डोंट हैव टू फिल एनीथिंग, तुम्हें अभी बस एक कंप्यूटेशन करना है। सो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल ट्राई टू गेट ए का हैश। तो अगर ये ए एक प्रीफिक्स भी होता और सफिक्स भी होता, तो ये वाला जो नंबर है ये ए के साथ मैच करना चाहिए था, बट नहीं कर रहा है, राइट। तो मैंने ए का हैश निकाला, वो आया 3। और फिर मैंने देखा ठीक है इसका हैश कितना है, क्या ये दोनों हैश सेम है, तो मीन्स इट इज़ अ प्रीफिक्स एंड ऑल्सो अ सफिक्स। तो वो 2 था, तो दैट इज़ नॉट अ प्रीफिक्स विच इज़ ऑल्सो अ सफिक्स। देन तुमने ए बी कंसिडर किया, ए बी का हैश तुम्हारा आया 7 यहाँ पे। और फिर तुम देखोगे इसका क्या वैल्यू है, कि यहाँ तक अगर मैं स्ट्रिंग लूँ, ये लाइक व्हाट इज़ दिस 7, दिस इज़ एक्चुअली अ हैश ऑफ ए बी, राइट। ये जो हमने पीछे से कंसिडर किया था ये वाला, ये इसका हैश है, राइट। ये भी मैंने देखा अभी पीछे से ये वाला वैल्यू लेकर आ, उसने बोला तूने मुझे स्टार्टिंग के 2 कैलकुलेट किए 7 है, पीछे के 2 का वैल्यू भी 7 है, मीन्स ए बी इज़ अ प्रीफिक्स एंड ए बी इज़ ऑल्सो अ सफिक्स। समझा, राइट। ए बी इज़ ऑल्सो प्रीफिक्स, ए बी इज़ ऑल्सो सफिक्स। अभी जब तुम्हें स्ट्रिंग मिल गया ए बी, तो तुम यहाँ पे आओगे एंड व्हाट यूल डू इज़ हैश फ्रीक्वेंसी ऑफ 7, बिकॉज द हैश ऑफ, ये भी ये एक अजम्पशन है, ठीक है, हैश ऑफ ए बी इज़ 7। तो जब मुझे पता चला ठीक है, जब मैं पीछे से कैलकुलेट कर रहा था यहाँ के भी 2 वैल्यूज़ का हैश वैल्यू 7 है, यहाँ से भी जब मैं एक एक करके हैश वैल्यू ले रहा था उसका वैल्यू भी 7 है, तो हैश फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 अभी के लिए हो गया सेट 1। सिमिलरली तुम सी के लिए भी करोगे, बट अभी के लिए फॉरगेट दैट, ठीक है। ये लाइक हमने ऐसा कुछ प्रोसेसिंग किया फॉर ए बी सी ए बी। नाउ वंस यू आर डन विद दैट, व्हाट यूल डू इज़ तुम अभी इस स्ट्रिंग में आ जाओगे, ए बी वाले स्ट्रिंग में। अगेन यू विल कैलकुलेट द हैश वैल्यू ऑफ ए बी, यू विल गेट द हैश वैल्यू ऑफ ए बी एज 7, hash value of AB as 7. What is the step 1? See the count of hash frequency of this whole string, which is 7 in the frequency map. You will get your count as 1. Therefore, you will add to your answer plus 1. Similarly, again AB में अभी वो दूसरा प्रोसेसिंग चलेगा, that is prefix and suffix वाला, but for this particular example your answer is 1 only, क्योंकि AB for this particular AB, ये this is this is the second pair because it has this AB and it has this AB also. अभी एक चीज़ जो तुम्हें वो ट्यूटोरियल समझाएगा, बट आई स्टिल एक्सप्लेन दैट टू यू वंस। जैसे ए बी सी ए बी में ना, अगर मुझे प्रिफिक्स से लाइक सो बेसिकली जो ये एल्गोरिदम है हाउ इट वर्क्स इज़, ए बी का जो पॉलिनोमियल हैश है ना, दैट इज़ समथिंग लाइक ए इंटू पी रेस टू ज़ीरो प्लस ए इंटू पी रेस टू 1 होल थिंग मॉड बाय एम। सो यू हैव टू कंसिडर पी एंड एम, यू हैव टू टेक लाइक दोज, लाइक वो तुम्हारे खुद के वैल्यूज़ होंगे एंड इट्स बेटर इफ़ यू टेक इट एज अ प्राइम नंबर, ठीक है। सो मैंने जैसे इस केस में पी और एम लिया, मतलब बेसिकली यही लिया मैंने जो यहाँ पे इन्होंने दिया है। सो हाँ, दैट्स अप टू यू, बिकॉज इफ़ यू सी वो लोग जो हैश कोलिजन नीचे एक्सप्लेन करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/m, द प्रोबेबिलिटी दैट कोलिजन हैपेंस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/m। सो लार्जर द वैल्यू ऑफ फॉर एम, द लाइक प्रोबेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा, लाइक कम होगा कि वो मैच करेंगे। सो दिस इज़ हाउ द हैश वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड। अभी जब मैं प्रीफिक्स से कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, मेरे लिए काफ़ी ईजी है। तो ए इंटू पी ज़ीरो किया, मतलब ए इंटू 1 कर दिया, फिर उसको पी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ए इंटू पी हो गया। तो इट गोज़ ऑन वेरी सिंपली, लाइक वो इजीली हो जाएगा। सो इफ़ यू सी प्रीफिक्स से जब कैलकुलेट करना था ना, तो काफ़ी इजी था। हैश वैल्यू को मैंने पी पाव से मल्टीप्लाई किया, फिर पी पाव को पी से कर दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम पी का एक पावर बढ़ते जाएगा। लाइक ये मैं बस मैथ्स बता रहा हूँ, इसमें कुछ खास नहीं है। बट अगर तुम्हें सेम चीज़ वहाँ से करनी है ना, तो थोड़ा डिवाइड करने का थोड़ा सीन होता है मॉड्यूलों में। सो व्हाट यू कैन डू इज़, जैसे तुमने बी इंटू 1 किया, फिर इस पूरे चीज़ को मल्टीप्लाई बाय पी कर दो, एंड देन अगेन यू कैन ऐड ए इंटू 1। सो इट देन बिकम्स ए इंटू 1 प्लस बी इंटू पी। देन सपोज ये सी आया, व्हाट यू कैन डू इज़ मल्टीप्लाई दिस होल थिंग विद पी, this will become a into p plus b into p square, and then again add c into 1, basically p raised to 0 which is c into 1। तो ऐसे तुम राइट से भी ट्रेवर्स कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़ा सा एल्गोरिदम में चेंज करना। सो इफ़ यू सी, दिस इज़ हाउ आई कैलकुलेट व्हेन आई गो वाया प्रीफिक्स, एंड इफ़ यू सी ये सफिक्स हैश वाला फंक्शन, व्हाट आई डू इज़, मैं ये थोड़ा अलग सा है, लाइक पी पाव है, बट मैं पी पाव को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा,
मैं हैश वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि मैं जो नेक्स्ट एलिमेंट ला रहा हूँ उसको इंटू पी रेस टू ज़ीरो के फॉर्मेट में ऐड करूँ। ये मैथ्स है, ये तुम समझ जाओगे कि प्रीफिक्स और, क्योंकि तुम दोनों को सेम तरीके से नहीं कर सकते। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देयर इज़ अ गुड चांस यू वुड मेक दिस मिस्टेक, दैट इज़ जैसे तुम प्रीफिक्स कैलकुलेट कर रहे हो तुम वैसे ही सफिक्स कैलकुलेट करोगे। तो तुमने बोला ए इंटू पी रेस टू ज़ीरो प्लस बी इंटू पी रेस टू वन, फिर तुम राइट से भी वैसे ही चालू कर दिए कि बी इंटू पी रेस टू ज़ीरो प्लस ए इंटू पी रेस टू वन। सो दिस वोंट वर्क, राइट? पी के पावर्स लाइक बहुत अलग है, यहाँ बी का पी रेस टू वन है, बी का पी रेस टू जीरो, सो दिस वोंट वर्क। तुम जब लेफ्ट से हैंडल करोगे और जब राइट से हैंडल करोगे तो मैं वो मैथ्स थोड़ा चेंज करना पड़ेगा जब तुम राइट से हैंडल करोगे। तुम दोनों में सेम लॉजिक नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर दीज वैल्यूज़ आर नॉट सेम, राइट? वो तुम्हें बस चेक रखना पड़ेगा एक। सो हाँ, इतना ही है। फ्लो में भी कुछ खास नहीं है। द फर्स्ट स्टेप इफ़ यू सी इज़ ऑलवेज हैश फ्रीक्वेंसी। मैंने आंसर में हैश फ्रीक्वेंसी ऐड कर दिया। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि पहले तो उस पूरे स्ट्रिंग का हैश लेकर आओ एंड हैश फ्रीक्वेंसी मैप में उसका जितना भी फ्रीक्वेंसी ऐड टू योर आंसर। दिस इज़ देन द सेकेंड स्टेप वेर यू ट्राई पॉपुलेटिंग द हैश फ्रीक्वेंसी वाला मैप। एंड हाउ डू यू डू दैट? सेम थिंग, पहले मैं सफिक्स हैश लेकर आ गया। सफिक्स हैश जो मैंने बोला, मैं राइट साइड से सफिक्स आई का वैल्यू फिट कर रहा हूँ। देन आई वुड अगेन स्टार्ट इटरेटिंग फ्रॉम द प्रीफिक्स एंड आई वुड चेक कि सफिक्स हैश, जैसे अगर मैं बी पे हूँ तो मैं इसका सफिक्स हैश लेकर आऊँगा। सो बेसिकली यहाँ से दो नंबर लिए तो वहाँ से भी दो नंबर। देन आई विल गेट दैट वो राइट साइड का सफिक्स हैश इफ़ दैट इज़ इक्वल टू माई करंट हैश वैल्यू, दैट इज़ बेसिकली समझ गया ना? लाइक सामने से दो राइट से दो, दोनों का हैश वैल्यू का सेम आ रहा है, मतलब दैट कैन बी कंसिडर्ड फॉर आंसर्स जो इस स्ट्रिंग के पहले है। अभी जो लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स है ना, वो इस ए बी वाली चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। दैट्स वाई हैश फ्रीक्वेंसी में उसका फ्रीक्वेंसी ऐड हो गया, सो दैट इस स्टेप में हमें थोड़ा यूज़ आ पाए ये वाला जो स्टेप है। सो दैट्स इट। फिर तो आंसर में यू कैन जस्ट ऐड और एंड गेट हैश वाला फंक्शन अगेन सिंपल, मतलब तुम्हें बस वही जो यहाँ लिखा है बेसिकली कॉपी पेस्ट ही है ये जो यहाँ पे लिखा था। बट ये समझ लेना है कैसे काम करता है और हैश कोलिजन कैसे इसमें प्रिवेंट किया जाता है, लाइक इफ़ यू वांट टू रियली गेट डीप इनटू द मैथ, लाइक अदरवाइज अगर ब्लैक बॉक्स करना है सो दैट्स आल्सो फाइन, बट हाउ दिस वर्क समझ लेना, बिकॉज कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स टू एक्चुअली नंबर्स लाइक बहुत प्रॉब्लम्स में इट विल हेल्प। सो हाँ, दैट्स ऑल। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। बाय बाय।